Today, one of the biggest personality, one of the most inspiring personality is going to join us. And I would like to share one thing with you. Uh, when we do something, when we work for our dreams, there are many barriers comes in front of us. Sometimes in terms of time, sometimes in terms of money, sometimes in terms of technology, sometimes in terms of people. But uh, if you believe the same, that the barriers comes in front of you when you work hard, then that things need to be changed, because the real barriers is ourself who are stopping us to reach to the goal. And today, one of the most inspiring personality of is going to join our life, Miss Priya. She is the Miss Wheelchair, inspiring thousands of people and helping thousands of people to do well in their life. She is going to join with us soon. Hello, ma'am. Thank you for joining our live. Hi, good evening to everyone. Thank you for Good evening. inviting me here. It's my pleasure that I'm talking to you, and I can say you are the most inspiring lady of India, because the things That's an which you honor. have done, and there was a time when you have nothing with you, and now you are inspiring thousands of people and you are helping thousands of people. Thank you, ma'am, for joining us. You're most welcome. It's a pleasure to be here today. I feel Okay. it is going to be a great conversation today. Sure, ma'am. Ma'am, everyone know you who are in our life, but still, would you like to tell them what you are currently doing and what you are? Yeah. At present, I'm a practicing psychologist. I'm a winner of Miss Wheelchair India 2015. I'm a brand ambassador of Miss Wheelchair World 2017. And I'm a brand ambassador of Foxeye, Save Girl, Child, Women Empowerment. Besides that, I'm a motivational speaker. I have had two TEDx speeches till date. Besides that, I am a fine artist, content writer, and a YouTuber. So I'm doing several things at present. Okay, ma'am, you are suffering from one disease called lupus. And Yeah. when did you come to know that you are suffering from that disease? Okay. I was 19 years old at that time and I was pursuing bachelor's in physiotherapy. I was in the first year itself when this disease got diagnosed. And this disease is incurable and unpredictable most of the time because it is a kind of silent disease which suddenly attacks any of the vital organs. Most of the time it is kidney or the heart which gets involved, but I am the rarest of the rare case where my spine got involved. And a doctor couldn't find out on time, so that made me paraplegic. So I was bedridden for 18 months and I had to discontinue one of the this graduation course, physiotherapy. I went into depression all because of this reason. Since I had to discontinue my studies, and that medical studies is not easier one, we have to study a lot of thick books. So that came as a pressure. I was a super ambitious girl. I wanted to become a doctor. So that's why that pressure was quite big. I recovered within 2.5 months. Almost it took 3 months. But again, to recover fully, it took me around 6 to 7 months. So I had to continue my medicines till 6 months. Then I recovered, and then suddenly, after some time, I got bedridden. I was bedridden for 18 months. When I somewhat recovered, but what my doctor told me that you won't be able to walk anyways and forget about running. You have to use wheelchair for commuting purposes, and this is the only thing that we can do for you. Now I had to depend on medicines all the time. I am still on medications. I have to take medicine 3 times a day, and those medicines do have side effects. Like I'm on steroids. I'm on hydroxychloroquine. Steroids reduces bone density. It causes hair loss. Even lupus causes hair loss. Lupus causes depression as well. Mood swings are there. It reduces your stamina. Uh, uh, like I all most of the time, most of the patients of lupus feel fatigued. They feel like they have no energy to do anything. So this is something which every lupus patient has to suffer. But person to person, it varies. This disease varies where what it is affecting, like which organ is involved. So mine is, since it is a spine, so I have difficulty walking, standing like this.
Means you are still struggling, but you are helping many people. Ma'am, you want to be a doctor? Yes, 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 I yes. would Please not carry on. say struggling. I would not say struggling, since that's a negative term, I feel. We should Yes, not use this word because it itself puts you in towards negative side. So I would say I'm a warrior. I do fight with my challenges, and I win most of the time. Sometimes, yes, it happens that you lose hope, or sometimes it happens you do not succeed in one go. But again, you need to find the solutions in what way you will have to succeed. There are different ways of achieving your dream, your aim. Now, it depends from person to person. Some people succeed in lesser steps, but sometimes it happens that most of the people do have to struggle a lot. But it depends how motivated you are, how determined you are, and do you really want your aim, or do you really want to achieve your goal, or it's just like to prove people or to prove world. So it depends why you want to achieve your goal. and why you want to achieve your goal, ma'am? Because I want to keep myself happy. For my That's a great happiness, I answer. do. Okay, ma'am, you want to be a doctor, if I'm not wrong. So why your roads turned towards modeling? See, it happened. Actually, I would say Miss India is also an accidental thing that happened to me, because I have always been a studious kid and very shy. I'm very camera shy. Still, I feel uncomfortable in front of the camera. When I won Miss India, after winning this Miss India, I got some opportunities for modeling thing. So I just got that opportunity and I said yes, because I like exploring different things. Whatever opportunity I get, I just say yes, because I want to experience life in every mode, and it helps me grow in mentally as well as in other aspects. It makes me more mature, I feel. Ma'am, how you handle with these kind of stuff? For example, you are not able to speak in front of people. So how you manage these kind of thing to, to better your weakness, to prove people wrong? So you mean stage phobia? Uh, Yeah, I have Stage faced. 14. Yes, Yes, ma'am. I have faced stage phobia. Actually, it developed at the when I was in fifth grade. I forgot my speech in front of the judges, so that was the first interaction of me in front of the people. So I was I was nervous in front of the people, and I decided that I am the one who could not perform solo. Again, at in eighth standard, I again tried to perform solo, and again I forgot my poem. So from that day I had decided that whenever I will perform in groups, but never I will perform in solo competitions and all. uh, when this happened, this disease happened, I had to stay at home around 8 to 10 years. I have lost a lot many years recovering. So that was something which is pushing me all the time, that I have to do something with my life. I don't want this kind of life, staying at home and crying and grieving all the time. Why this happened to me? Why I am the why others are successful and I am not anywhere? So this thought was just pushing me that I should do something. So I did BCA, I did MCA. I topped in both the courses in my regional center. And after finishing MCA, I finished my MCA in June 2014. That till that time, I was at home. I was studying. I was teaching students. I was taking care of my education. I was funding my education by teaching students. Uh, Everything was fine. I used to do painting, a lot of painting. I sold my paintings. But one thing was pinging me. I'm still inside my home. I have to get out from the house somehow. So this opportunity came, Miss India happened, and I won that competition again. That was a challenging one, since I had two, three issues. I was overweight. I had stage phobia. I do not know how to put makeup
and I was very poor in that because when somebody has got this kind of diseases and they have like I have a lot of scars like this and my whole of the legs are filled with big scars. So that was something which was pinging me that I am not eligible for Miss India contest since my body has lot many scars and I was fat also. Again, since I had done one diploma course in nutrition, so that education helped me to reduce my weight. So I reduced my weight from 60 kg to 48 kg in 6 months. My activity was sedentary. I couldn't even walk. So this was something which helped me to reduce my weight. Worked on my weight, my stage phobia issue also. Uh, what I did was I worked on I saw YouTube videos, I researched on how to face people, how to speak in front of the people, and it helped. Next thing was makeup stuff. Again, so I learned through YouTube channels. So these three, when I worked upon and I succeeded, then I performed in Miss India contest and I won that contest on 5th of December 2015. Yes, you really done well in that competition and you won that. And after that, you also represented India in the international level as well. Ma'am, you were in the hospital for more than 4.5 months, if I'm not wrong. And Yes. you are seeing yourself that you are going away from your dreams at that particular time. So how you handle that stuff? Sure, would they be able to save my leg or not? But that was the condition where they were almost 50% chances that they might cut my leg. It was that situation. And then again, uh, doctors were confused what was happening to my health since my fever rose to 107 degrees and I was shivering. My body was totally red and I was on several kind of antibiotics. So that was something which was making me very serious. Some doctors diagnosed me as a septicemic. Some said I have blood cancer. Some said something else. So every branch of experts came and diagnosed me with different ailments in the hospital itself. Again, during that period, I had skin grafting thing also happened. So two times I was serious. Once, one time, all because of antibiotic, excessive antibiotics were given to me. And at that time, I requested my doctor to remove all the antibiotics. And they thought I would die next day. So they removed all the medicines and asked my parents that you just call your relatives, whoever wants to meet her. We are not sure for the next morning. So that happened, but next morning I recovered since they had removed all the antibiotics, and whatever happened to me was all because of antibiotics. Second time, I was given extra doses of anesthesia. I couldn't even came into my senses within 4 hours. So it took me almost 4 to 5 hours to regain my senses. So these were the two incidents where I was very serious. After 4.5 months, actually during that period also, I was bored of seeing people all sick around and white sheets, and white walls, doctors, nurses, and no one else. So it was like I wanted to get out from that trap. So I requested my doctor to give me a discharge because skin grafting what had happened, and I just had to recover in those lines. And treatment had I had to take medicines. That is all. So on my request, they discharged me, and but they told me that don't come back ever. We are not going to admit you this time. I said okay, I won't come. And when I reached home, I started working on myself. I started reading books. I started doing paintings. At that time, I had one incomplete painting. So while I was in the hospital, I used to think about that painting. That yes, I have to finish that painting whenever I get back to home, and that was the inspiration which maintained my willpower, and I recovered. And when you have changed your hobbies, you have to change many more things. So how you handle that kind of thing? Like now you can not run, now you can not walk. So how you are managing that stuff? That is also very hard to handle. Uh, See,
painting thing and rest of the things, like I do craft work, I do painting, and I do write poetry, I do sing. These are just a hobby, and these are the things which help me to overcome from depression, as well as to manage my mind. Like when somebody has got this kind of diseases, why they get into depression is they do not manage their mental state in the manner which is required. Like you have to be occupied in those activities which make you happy. If you are productive, then that works as a motivation as well. So that was helping me, since I was thinking that someday I would walk. Like doctor did have told me that maybe you won't be able to walk anyway, but still I was hopeful that someday I would walk. So let us do something so that I should not waste time during that hard phase, and I should be occupied and busy in those activities. So I used to do several things and learn several things so that that time should be utilized. That was my criteria. Okay, ma'am, we have a few questions from the question section. We have one question that, मैम क्या उस समय डॉक्टर को इसका इलाज नहीं पता था? इस क्वेश्चन फ्रॉम उत्कर्ष. यस, मेरी जो बीमारी है वो काफी रेयर है. बहुत सारे डॉक्टर्स को बिल्कुल नहीं आइडिया होता इस चीज का. उनको ये पता है कि ऑटो इम्यून डिजीज है. ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपका दुश्मन हो जाता है, आपके बॉडी को नहीं पहचान पाता. इट इज सिमिलर लाइक आपके देश की जो फौज है वो भारत अपनी देश की जनता पे अटैक करने लगे. ये वैसा ही सिनेरियो है कि हमारी फौज जो हमें बचाने के लिए होती है, अगर हमारी जनता पे अटैक करने लगे तो कैसा कैसा होगा पूरा सिनेरियो. सेम इज विद माय बॉडी. मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो मेरा दुश्मन है, मुझे नहीं पहचानता, तो इसीलिए मेरे ही शरीर पर अटैक करता है. तो ये ऐसी चीज है जो डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि कैसे हैंडल करना. अब तो मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस हो गई है, तो अब तो बहुत कुछ पता है, बट जिस वक्त मुझे ये हुआ था उस टाइम बहुत चीजें नहीं पता थी. एंड सेकेंडली, ये बीमारी कहाँ अटैक कर रही है, वो बहुत साइलेंट वे में अटैक करती है, तो इसीलिए पता नहीं चलता कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है अगर आपने सारी होल बॉडी के टेस्ट प्रॉपरली नहीं किए हैं. तो क्योंकि इस बीमारी में जनरली जो केसेस डॉक्टर ने उस वक्त देखे थे वो किडनी और हार्ट के देखे थे, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी स्पाइन जाएगी. और इसी बीच वो बीमारी ने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया मेरी स्पाइन को कि वो इरिवर्सिबल चेंजेस थे जो कभी ठीक नहीं हो सकते. तो दैट इज वाई मैं सफरर बन गई. और अदरवाइज ल्यूपस के पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मली चलते फिरते हैं, काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. कुछ चीजें कॉमन होती है, लाइक सन सेंसिटिविटी कॉमन होती है, फटीग होना बहुत कॉमन होता है, देन मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं. तो ये चीजें तो सब में देखने के लिए मिलेगी. जॉइंट पेन बहुत कॉमन होता है. तो मेरी फिंगर्स में भी, मतलब मैं ओवर एक्सर्शन नहीं कर सकती, मेरी फिंगर्स में पेन होना शुरू हो जाता है, एक हेडेक शुरू हो जाता है. बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, सुन के लगता है अरे इतनी सी तो बात है, बट जो सफरर होता है उसको पता होता है, जो डेली बेसिस पे इस चीज को फेस कर रहा है, इट बिल्ड्स अप फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. एंड मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया जो कि सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? या मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है ल्यूपस वॉरियर्स करके. अभी रिसेंटली मैंने उसका पेज भी बनाया है, क्योंकि हम अब चाह रहे थे नेक्स्ट स्टेप में, मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने कुछ डॉक्टर्स ऐड किए हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं. और मैंने अब पेज बनाने का इंटेंशन ये था फेसबुक पे कि हम कॉन्फ्रेंसेस कर सके और मैक्सिमम पीपल उसको ज्वाइन कर सके. जो जरूरी नहीं है कि ल्यूपस पेशेंट हो, बल्कि आम जनता भी जाने कि ल्यूपस होता क्या है. अब तक तो हमारा ये क्राइटेरिया था कि ल्यूपस के पेशेंट्स को ही हेल्प करना है, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि हम किसी तरह कनेक्ट रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें, अपनी प्रॉब्लम से एक दूसरे को सिखाएं. क्योंकि दिस डिजीज इज रेयर, डॉक्टर्स आर वेरी रेयर. सो बहुत बहुत एरियाज में तो डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं होते, तो उन पेशेंट की भी हम हेल्प कर सके. इवन मैं टेलीफोनिक काउंसलिंग भी करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ल्यूपस पेशेंट्स की. सो अब पेज बनाने का इंटेंशन ये है कि हम डॉक्टर्स को इनवाइट करेंगे, डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे इस डिजीज को हैंडल किया जाए और क्या क्या इलाज हो सकता है, सो दैट ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते इसका ट्रीटमेंट, उनको भी हेल्प हो सके. ओके, सी माय पेरेंट्स आर अ बिगेस्ट मोटिवेटर्स इन माय लाइफ. मेरा जब बहुत बुरा टाइम चल रहा था तभी भी वो मेरे साथ थे. उन्होंने कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है जो शायद दुनिया को बोझ लगता हो, दुनिया को बहुत ऐसा लगता हो ये पिटी करते हो लोग, सिंपैथी दिखाते हो या कुछ और सोचते हो कि ये पिछले जन्म के, मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीजें लोगों से सुनी है जो सुन के लगता है कि दिस दिस शुड नॉट हैपन. लोगों ने मुझे यहाँ तक बोला है कि
इवन जो मेडिकल साइंस के लोग हैं उन लोगों ने मुझे ये बोला है कि भगवान के सामने बैठ के रो और उनसे माफी मांगो। कैन यू इमेजिन मैं किस चीज की माफी मांगू जिस चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्यों हुआ है। सो ऐसी चीजें लोगों ने बोला है। एंड मैं इतनी डर जाती थी कि मैं ब्लड टेस्ट के लिए जाती थी तो मुझे लगता था कि वो नर्स अगर मुझे दोबारा मिल गई तो मैं उसे क्या कैसे फेस करूंगी, वो दोबारा मुझे कुछ ऐसा ताना मारेगी कि मैं फिर डिमोरलाइज हो जाऊंगी। इतनी मुश्किल से हिम्मत बटोर के इंसान आगे बढ़ता है। फिर मैंने सोचा अब अगर वो मुझे मिलेगी तो मैं बोलूंगी मैंने रो रो के बकेट भर दी, लेकिन अभी भी मैं ऐसी हूँ, अब बताओ अब क्या करूँ। सो दिस इज द वे टू हैंडल सच पीपल हु थिंक कि सामने वाले को बुरा ही नहीं लगेगा, हम कुछ भी बोल देंगे। सो बट हाँ, मेरे मोटिवेशन मेरे हमेशा पेरेंट्स रहे हैं जिन्होंने अपनी हार्डशिप्स मुझसे शेयर की है कि कैसे वो स्ट्रगल करते थे अपनी लाइफ में, कैसे उन्होंने सक्सीड किया, और ये मेरे लिए मोटिवेशन बना है। Okay, and ma'am, you are also a writer and author. So, ma'am, would you like to tell something about your books that you have written? यस, आई हैव बीन राइटिंग पोएम्स। जब भी मेरा मूड ऑफ होता था तो मैं पोएम्स लिखा करती थी घर में बैठ के। ये मिस इंडिया से पहले की बात है, बट कभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे राइटिंग के लेवल पे कुछ करना है। बट जब मिस इंडिया हुआ, मिस इंडिया के बाद मैं यूएस चली गई, तो यूएस में क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, आई जस्ट कट ऑफ फ्रॉम दी ऑफर्स, क्योंकि इंडिया से ऑफर थे और यूएस में बैठ के मुझे कुछ ऑफर नहीं था, मैं बहुत फ्री थी। सो मैं क्वोरा में लिखना शुरू हो गई। मैं क्वोरा में लोगों के आंसर्स लिखती थी। अभी भी मेरी प्रोफाइल है, बहुत कम जाती हूँ, बट आई डू मेंशन वेन एवर आई गो, आई डू राइट। तो क्वोरा में मुझे न्यूयॉर्क से किसी राइटर ने देख लिया एंड उन्होंने मुझे ऑफर किया कि उनकी साइट के लिए मैं कुछ लिखना चाहूँ तो आई एम मोस्ट वेलकम। एंड आई गॉट फर्स्ट ऑफर फ्रॉम यूएसए। तो न्यूयॉर्क की एक कंपनी है पॉपुलेरियम करके, उनके लिए मैंने स्टोरीज लिखी। एंड देन व्हेन आई केम बैक तो मुझे द कंप्लीट विमेन से ऑफर आया एज अ ऑथर, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखना शुरू किया। इट वाज ऑल पेड। तो ये दैट वाज आल्सो अ मोटिवेशन कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। अगेन एक बुक में मैं को ऑथर हूँ, होल्डिंग माय टीयर्स करके बुक है, वो 2016 में ही पब्लिश हुई थी। उसमें मैंने एक स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरीज है, जितनी भी मैंने लिखी है सारी रियल लाइफ स्टोरीज लिखी है। सो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। अगेन आई वांटेड टू राइट माय बुक, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए होते हैं, एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट। बिकॉज सी जो मोटिवेट कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो डीमोटिवेट करते हैं वो आपको चैलेंज करते हैं एक्चुअली बेटर काम करने के लिए। सो मैं तो गॉड इन डिस्गाइज मानती हूँ उन लोगों को जो ऐसे हैं, जो मुझे बुरा कह देते हैं। हाँ, मैं कुछ सुना भी देती हूँ। बेशक मैं ऐसी नहीं हूँ कि सुन के रह जाऊं। सुनाना जरूरी है, उनको आईना दिखाना जरूरी है कि आप कितने गलत इंसान हो। बट अगेन इसने मुझे हेल्प किया। लाइक मैंने अपनी मेरी खुद की लाइफ की स्टोरी के लिए मैंने बुक लिखी थी, पब्लिशर ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी वो बुक। बट मुझे अब टाइम नहीं मिला कि मैं दोबारा उस बुक को रीस्टार्ट करूं। बट वेन एवर आई विल गेट टाइम आई वुड सर्टेनली वर्क ऑन इट एंड आई विल पब्लिश दैट बुक। आई हैव चैलेंज दैट पब्लिशर कि एक दिन मेरी बुक जरूर आएगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट थिंक कि मुझे पे करके पब्लिश करनी होगी। सो आई हैव टेकन दैट एज अ चैलेंज। एंड ये भी एक लर्निंग है हम सबके लिए कि अगर कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसको प्रूव करो कि तुम गलत हो। ओके मैम। यस, बिल्कुल। एंड यू नीड टू वर्क, लाइक हमें उसे इस तरह से नहीं लेना, अरे आई एम द बॉन्ड, मुझे कैसे किसी ने मना कर दिया। लाइक मिस इंडिया के बाद मुझे रिजेक्शंस मिलते हैं, इट डजंट मीन कि हाँ मैं तो भाई मिस इंडिया हूँ तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप अचीवर हो स्टिल यू कैन हैव हार्डशिप्स, बट यू नीड नॉट टू थिंक इन दैट मैनर कि अरे मुझे मना कर दिया तो मैं तो डिप्रेशन में ही चला जाऊंगा अब या चली जाऊंगी। दैट इज नॉट माई आइडिया। माई आइडिया इज टू वर्क अपॉन इट। हो सकता है मुझ में कमी है इसलिए मुझे मना किया गया है, so I have to work on it more. यस आई रीड इट फॉर श्योर। आयुषी बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे। एंड आयुषी जो है अर्न विद आयुषी, इन्होंने मींस पहले बहुत मेहनत की थी हमारे चैनल के लिए। एंड ये आपकी, मैं बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी फैन है आपकी। हर टेडेक्स, मतलब आपने जो टेडेक्स दी है, आपके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। एंड वी आर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट यू फ्रॉम लास्ट 1.5 months, and we believe you are the personality who can inspire many people, and the things you have faced is such inspiring thing which I believe, because I am एक टाइम honored. पे जब Thank you so much. एक एक टाइम पे मैम जब आपके पास कुछ भी नहीं था, जब मतलब कुछ भी नहीं था, वहां से आपने एक एक स्टेप लिया और अपनी हर एक चीजों को चेंज किया। किसी को ब्लेम नहीं किया कि मैं ऐसे ही हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है। आपने मेहनत करते गए और जिस लेवल पे अभी आप हैं
उस चीज को हम लोग डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। आप मतलब इतने बच्चों को हेल्प कर रही हैं, आप जो चाहती हैं आपने वो चीजें अचीव की। सो मैम, हैट्स ऑफ टू यू मैम, Thank you you are the so much. greatest personality I ever met. And so let's ahead. So ma'am, your upcoming projects. See, my book is one. Again, I'm new to this field, psychology, because मैंने last year ही इस course को finish किया. I'm double postgraduate now, masters in computer applications and masters in psychology. तो साइकोलॉजी मुझे हमेशा से ही अट्रैक्ट करता रहा है, सिंस मैंने खुद डिप्रेशन फेस किया है और मैं हेल्प करना चाहती थी लोगों की, बट प्रोफेशनली मैं जानना चाहती थी एक्चुअली माइंड, हाउ माइंड वर्क्स एंड व्हाट आर द डिसऑर्डर्स एंड व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। लाइक हर दूसरा इंसान जब सैड होता है बोलता है अरे आई एम इन डिप्रेशन। डिप्रेशन दैट इज नॉट डिप्रेशन। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आप 2-4 दिन सैड हो गए, इट इज नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। तो हर दूसरा इंसान आके अगर आपको ये बोलते कि मुझे डिप्रेशन है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। So this is very important to understand what is actually a depression. So that was the main idea why I went into this field. Since I am a motivation speaker, so that also helps. So मेरा main future projects में एक तो ये है कि मैं अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। सेकेंडली मेरा चैनल है, उसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, यूट्यूब चैनल मेरा। बुक तो है ही। लेट अस सी, अगर सी I do not belong to a very rich family. I belong to a very humble family. I wanted to open an NGO, non-governmental organization, where I could help people who are wheelchair users, who feel that they cannot do anything in their lives. So उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अभी भी अपने देश में जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनकी हालत बहुत बहुत बुरी है। नॉट बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स बट ऑल बिकॉज आवर कंट्री इज नॉट एक्सेसिबल। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जाती हूँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे बड़े बड़े नाम क्यों ना हो, बट अगर वहां पहुंच के जब मैंने देखा है तो स्टेजेस में रैंप नहीं बनाए जाते। गेस्ट मुझे बुलाया जाता है, उन्हें पता होता है मैं व्हीलचेयर यूजर हूँ, अगेन वहां रैंप नहीं होते। क्यों? ये मेरी बेइज्जती नहीं है, मेरी इंसल्ट नहीं है। आप मुझे गेस्ट बना के बुला रहे हो, रैंप तक नहीं बनाया, और आप चाहते हो कि मेरी व्हीलचेयर उठा के ऐसे ऊपर चढ़ा दोगे। क्या अगर मैं गिर गई, मेरा फ्रैक्चर हो गया, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बट वो तो चलो सेकंड चीज है, लेकिन आप मुझे रेस्पेक्ट दे ही नहीं रहे एट फर्स्ट प्लेस इफ यू आर नॉट अलाउइंग मी टू देयर ऑन द स्टेज। आप मुझे गेस्ट बुलाते हो लेकिन आप स्टेज के नीचे खड़ा होके मुझे अवार्ड दे देते हो या स्वागत कर देते हो। ये तो बहुत बेइज्जती की बात है। ये तो चलो ठीक है, अचीवर से व्हीलचेयर यूजर्स में बहुत कम होते हैं, बट एक आम बच्चे की बात करें जो पढ़ना चाहता है, वो सिंपली इसलिए नहीं पढ़ पाता बिकॉज कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते ही नहीं है एक्सेसिबल। और ये गांव गांव तक होना जरूरी है, क्योंकि गांव का बच्चा क्या डिसेबल नहीं होता? क्या उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती? अगर वो पढ़ लेगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, वो अपने से कमा पाएगा, कुछ कर पाएगा अपनी लाइफ में। आप अगर उसको कुछ दोगे नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, तो वो क्या करेगा? वो डिपेंडेंट ही तो रहेगा। फिर आप उसे बोलोगे कि बोझ है। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की सोच इतनी बुरी है। मतलब मैं एजुकेटेड सिनेरियो में भी बात करूं, डॉक्टर्स तक को नहीं पता एक्सेसिबिलिटी होती क्या है। वो सोचते हैं रैंप होना इज एक्सेसिबिलिटी। नो, रैंप होना सिंपली 1% एक्सेसिबिलिटी है। टॉयलेट्स एक्सेसिबल नहीं होते। टॉयलेट्स के जो दरवाजे, वो लिखा होता है ऊपर, टैग लगा होता है, वो जो हमारा जो आइकन होता है उसका टैग लगा होता है कि स्पेशली एबल्ड के लिए बना है। जब आप डोर खोलते हो पता चलता है डोर के अंदर, तो डोर से तो आपकी व्हीलचेयर ही पास नहीं हो रही। तो व्हाट डू यू वांट अस, कि हम व्हीलचेयर से कूद के नीचे रेंगते हुए टॉयलेट यूज करेंगे? व्हाट डू यू वांट अस टू डू? सो ऐसी बेइज्जती मारी जाती है। अगेन मैं एयरपोर्ट की बात बताऊं आपको, मैं एयरपोर्ट में जाती हूँ तो जो स्पेशली एबल्ड की टॉयलेट जरूर एक्सेसिबल बनाए होते हैं, बट उसके अंदर घुसे कौन होते हैं? सीआरपीएफ के फौजी सो रहे होते हैं अंदर घुस के। आर दे डिसेबल्ड? हाउ देयर दे टू एंटर इनसाइड द टॉयलेट ऑफ अ स्पेशली एबल्ड? व्हाट वुड हैपन अगर स्पेशली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड सिर्फ वो नहीं होता जो इंसान चल नहीं पा रहा, उनके साथ और भी दिक्कत होती है। लाइक जिनकी स्पाइन इन्वॉल्व है, वो लोग हैं जिनका बॉवल ब्लैडर कंट्रोल नहीं है। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर यूरिन और पोटी। तो अगर ये कंट्रोल नहीं है और आपने उनके टॉयलेट पे किसी सीआरपीएफ को जवान को बिठा के रखा है अंदर, तो वो क्या कंट्रोल कर पाएगा इतनी देर तक? टॉयलेट कैसे यूज करेगा वो? आप उनके साथ ऐसी ऐसी सिनेरियो में उनको रखना चाहते हो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू द पीपल विद डिसेबिलिटीज। और इनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो हम मोटिवेट किससे होते हैं? हम एक्टर से मोटिवेट हो जाते हैं। हम ऐसे लोगों से मोटिवेट हो जाते हैं जो थोड़ा सा स्टाइलिश कपड़े पहन के फोटोज या मेकअप लगा के फोटो खिंचवा लेते हैं,
आप उनसे मोटिवेट नहीं होते हो जिनसे आपको होना चाहिए। मेरे जैसे लोग, मेरी स्पाइनल प्रॉब्लम, मुझे पता है मेरे साथ कितनी दिक्कतें हैं। मेरे जैसे लोग कहाँ कहाँ कितनी कितनी चीजें स्ट्रगल मार के पहुंचते हैं, और अगर हम कंप्लेन करते हैं ना तो 4 लोग ऐसे होते हैं जो आके ये बोलते हैं कि हमारी वजह से तो तुम बने हो। दिस इज सो बैड। आपने देखा ही नहीं हमने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और हम इस यहाँ तक पहुंचने के बाद भी हम हेल्प करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें पब्लिसिटी मिले या कुछ। मैं कभी ये काम नहीं करती, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि उन लोगों की हेल्प हो जो वाकई नीडी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सो मैं एंड इसलिए मैम, एनजीओ खोलना चाहती हूँ अगर मैं कुछ कर पाऊँ। बट अगेन हमारे देश में जो एनजीओ है ना वो 3 लाख से ऊपर है, लेकिन काम कुछ नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे आप देखो कुछ काम नहीं किया। जो एनजीओ इसलिए बने हैं जो स्पेशली एबल्स के लिए काम कर सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं स्पेशली एबल्स के लिए काम। आप रियल डाटा निकाल के देखो, sufferers are sufferers and they are there only, they haven't achieved anything, they haven't got those services. एग्जैक्टली मैम। एंड मैम, कुछ चीजें वो केवल पेपर्स ही पे रह गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो 5 स्टार में भी है कि एक रूम होना चाहिए डिसेबल के लिए, Exactly. उसमें वैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो मैंने कोई भी 5 स्टार होटल्स में भी नहीं देखी। तो कुछ चीजें हैं जो पेपर ही पे रह गई हैं, वो भी चेंज होनी चाहिए, आई गेस। See, 5 star 4 star hotels I have visited, I have seen, होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं, वो रूल्स फॉलो करते हैं 5 स्टार एंड 4 स्टार, बट उससे नीचे वाले जो होटल्स होते हैं उसमें ऐसा कुछ रूल इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। दिस इज बैड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ आप सोचो, अगर 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स में ये रूल इम्प्लीमेंटेड है, इसका मतलब तो ये है कि जो रिच है उसको तो सब मिलेगा, लेकिन जो पुअर है, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता 4 and 5 स्टार होटल, वो क्या करेगा बेचारा? वो कहाँ जाएगा? वो सड़क पे रहेगा, जाके कहाँ रहेगा वो? बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि जो 1, 2 and 3 स्टार होटल्स है उनको एक्सेसिबल बनाओ, जिसमें एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। वो नहीं दिखता। मतलब आप सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहे हो। जो एक मीडियम लेवल का इंसान है वो तो कुछ नहीं, और जो पुअर है उसके लिए तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सरकारी पेपरों में। दिस इज बैड। Yes, ma'am, and that thing need to be changed, I believe, Yes, and I that hope need to be that you changed, will and do even that younger thing. generation should participate in that. जैसे वो कैंपेन करते हैं ना, इसका कैंपेन होना चाहिए। आप देखो, एक स्टेज के बाद हर एक इंसान डिसेबल हो जाता है। हमारे दादा दादी नाना नानी को देखो, उनको सहारे की जरूरत होती है, वो इंडियन टॉयलेट्स तक यूज नहीं कर पाते हैं। सो क्यों नहीं हम सोचते कि एवरीबडी हैज टू गेट डिसेबल एट वन स्टेज? अगर आप पूरा देश एक्सेसिबल बना लोगे तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। आजकल की Exactly. डेट में तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, चले जाते हैं विदेश अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के। वो बेचारे कैसे धीरे धीरे हिल हिल के काम करते हैं, और अगर कोई जगह एक्सेसिबल नहीं है तो दे आर सफरर्स। दे नीड टू हैव वन अटेंडेंट टू कीप देम अप एंड डाउन एंड हैंडल एवरीथिंग। सो अगर हम सारी चीजें एक्सेसिबल बना दें तो ये चीजें तो खत्म ही हो जाएंगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, सफरिंग भी बहुत कम हो जाएंगी। एंड मैम, ये चीजें स्प्रेड भी नहीं हो रही है। मतलब जो ग्रुप्स हैं, जिनको एनजीओज हैं, उनको इस चीज के लिए वर्क करना चाहिए, और जो लोग हैं उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए। अगर वो इंस्टीट्यूट। एनजीओज, यस, गवर्नमेंट को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए इस चीज को लेकर। दे शुड रियली चेक कि एक्चुअली व्हाट एनजीओज आर परफॉर्मिंग, एंड इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग उनका लाइसेंस कैंसिल करो ना। व्हाई आर दे देयर? किस लिए है? क्या क्या परफॉर्मेंस दिया? सिर्फ एनजीओज में मैंने जनरली देखा है क्या करते हैं एनजीओज ना, अवार्ड सेरेमनी कर देते हैं। देखो हमने इस स्पेशल लेबर को बुला के अवार्ड दिया था। अरे अवार्ड इज नॉट सर्विंग मी। मेरे सिर्फ ड्राइंग रूम में किनारे पे लगा हुआ वो एक मोमेंटो है, नथिंग एल्स। इट हैज नॉट हेल्प मी। मुझे कुछ नहीं सिखाया उस मोमेंटो ने, कुछ नहीं सर्व किया। सो दैट इज व्हाट आई वांट कि आप ना उस मोमेंटो की जगह जाके एक गरीब बच्चे को पढ़ा दो जो स्पेशली एबल्ड है या ऐसे ही गरीब है, उसको कुछ बना दो, इंडिपेंडेंट बना दो। दैट वुड हेल्प दैट पर्सन। एंटी सोशल पर्सनालिटीज कैसे डेवलप होती है? एंटी पर्सनल पर्सनालिटीज, एंटी सोशल पर्सनालिटी भी इसी वजह से डेवलप होती है क्योंकि वो गरीबी फेस करते हैं। एंटी सोशल कौन होते हैं? जो क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं। वो क्यों इस फील्ड में जाते हैं? अपनी मर्जी से जाते हैं? नो। कुछ तो बनते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, बट कुछ मजबूरी में बनते हैं क्योंकि उनका पेट भरने के लिए खाना नहीं होता। उनकी बीमार माँ मर रही होती है, क्या करेंगे? चोरी तो करेंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, उनके पास कुछ होता ही नहीं है कमाने के लिए, क्या करेंगे फिर? सो हम खुद, अपना देश, पूरा देश रेस्पॉन्सिबल है। अगर अभी भी हम जागे नहीं, अगर यंग जनरेशन नहीं जागी ना इस चीज को लेकर, तो ये सफरिंग चलती रहेगी, क्राइम होते रहेंगे हमारे देश में। Exactly, ma'am. Okay, ma'am, we have again few questions in the question section. Sorry, I am Yeah. not able to take them.
ओके मैम, सो आप फिर से मिस वर्ल्ड के लिए जाओगे? नहीं नहीं, मेरा ये एम नहीं है। मैं मिस वर्ल्ड के लिए गई थी बिकॉज मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी पहली बार अपने देश को रिप्रेजेंट करने की। आई एम द फर्स्ट वन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे देश का क्या कल्चर है मैं वहां जाके बता सकूं। बट हर बारी एक ही चीज को करने से कुछ प्रूव नहीं होता। जो मुझे दिखाना था मैं कर आई। मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो ड्यूटी थी, जो मुझे बताना था दूसरे देश के लोगों को, मैंने बता दिया। अब मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मैं पूरी दुनिया में स्प्रेड करना चाहती हूँ अच्छी चीजें, हमारा देश का जो रियल कल्चर है। हमारे देश की बहुत बदनामी भी हो जाती है कई बारी, बट वो चीजें, गलत चीजें ही क्यों स्प्रेड होती हैं, सही चीजें क्यों स्प्रेड नहीं होती। जैसे निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में ये चीजें बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड में फैल गई, बट कोई अच्छी चीज क्यों नहीं फैलती इतनी जल्दी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने देश की अच्छी चीजें, हमारे देश का कल्चर बताएं कि हमारे देश का कल्चर क्या है। हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वेस्टर्न कल्चर से, लेकिन हमारे देश का कल्चर तो दबता जा रहा है, जबकि उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें, अगर आप बुक्स पढ़े, अपने ग्रंथ पढ़े, तो उससे बहुत सारी चीजें मिलेंगी हमें सीखने के लिए। हमारी एजुकेशन ओके, में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यस, बिल्कुल। एंड मैम, वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम वेदांत शुक्ला. कैन यू या प्लीज आंसर दैट? मैम, इट इज, आई गेट फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. I am not able to read actually. I could see Okay, only Dr. Nitin Saluja has joined, Dr. Ronak okay, Charia. ma'am. Yeah. Okay, and the question is, please ask ma'am about our intensive Bluebell stories. What is Bluebell stories? We never आई got थिंक chance to ask. ब्लू बेल ने मेरा इंटरव्यू किया था, उसके बारे में शायद वो पूछ रहे हैं। हाँ, मेरे इंटरव्यूज Yes, ma'am. बहुत सारे आए हैं, बट मेरे सिर्फ एक नहीं होते, मेरे बहुत सारी साइट्स में है, बहुत सारे पेजेस में है, तो आई डू नॉट पर्टिकुलरली रिमेम्बर। बट सेम स्टोरी है, आप कहीं पे भी पढ़ लो, स्टोरीज तो एक ही है, अपना अपना तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। जो मैं यहाँ बता रही हूँ आप मुझे वहां सुन लीजिएगा। हाँ, आपके क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू मे आस्क। Okay. Ma'am, if I'm not able to achieve my target, what should I do? See, you need to check your aptitude. See, every person is unique. सबके अंदर कुछ स्किल्स ज्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। अगेन ये साइकोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। हमारा एप्टीट्यूड होता है, हमारी क्या क्या हमारे अंदर ऐसी स्किल्स है जो ज्यादा अच्छी है। जैसे कि आप देखेंगे स्कूल में जब हम थे, हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं हमारे ब्रेन में। तो हर एक बच्चा हर एक चीज में अच्छा नहीं हो सकता। सो यू नीड टू चेक, आपको आपके एप्टीट्यूड टेस्ट करना होगा, आपको चेक करना होगा आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आप में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, एंड देन यू हैव टू वर्क अपॉन दैट। हम क्या करते हैं जनरली, हमारा मेंटल जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है, अच्छा मेरे दोस्त ने ये किया, मुझे भी वही करना है, मैं भी तो उसी के जैसा हूँ। मतलब वी ऑलवेज कम्पीट। हमें बचपन से सिखाया जाता है, अरे हाँ देखो तुम्हारे अंकल के बच्चे ने ये कर दिया, तुम भी करो ना कुछ। वो देखो कितना नाम कमा रहा है, तुम क्यों नहीं कमा रहे हो। तो ये कंपैरिजन ना हम बचपन से देखते आ रहे हैं, एंड दिस इज मेकिंग अस ऑन द रॉन्ग वे, हमें गलत रास्ते में ले जा रहे हैं। तो पहले तो पेरेंटिंग सही होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पेरेंटिंग नहीं आती, लेकिन सब लोग पेरेंट्स है। फनी थिंग इज दैट। सो पेरेंटिंग भी एक चीज है जो सीखना चाहिए। एंड अगर पेरेंटिंग अच्छी है तो कोई बच्चा इस तरह से कंपैरिजन नहीं करेगा, कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा, एंड एवरी चाइल्ड वुड बी सक्सेसफुल। उनको पता ही नहीं होता कि उनके अंदर टैलेंट क्या है, वो गलत रास्ते चल जाते हैं, और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक उम्र निकल गई होती है। फिर सेक्रीफाइस के अलावा कुछ नहीं रहता, कॉम्प्रोमाइज के अलावा कुछ नहीं रहता। दिस इज Exactly, माय ma'am, and मैसेज टू एवरीवन। exactly, and you are the person who had shown us that followers doesn't matter, the work which people will see. And Yes. thank you everyone, and thank you ma'am for joining Thank our you so much Instagram for live. inviting me. And it was a wonderful session. And thank you so much for attending my session and talking to me. It's It it's was my an honor. pleasure, ma'am. Thank you It's so my much. pleasure. Thank you everyone. Thank you, ma'am. I hope you Thank you, all thank are you so safe much. and happy. All take care of yourself. Be safe. All the very best.